Hi dear students, how are you all? I hope you all are fine. Grade 8 subject computer, chapter number 1 and page number 7. Today I read the processing device. Since modern computers are based on the IPO cycle, the P part happens in a subsystem of the computer. This subsystem is most computer is known as the CPU. You already know that CPU acts as the brain of the computer and there is a subsystem inside the CPU that coordinates the actions of a computer. Out of the three systems of the CPU, CU, MU and ALU. MU is the memory unit. आप ऑलरेडी CPU के बारे में पढ़ चुके हैं कि CPU क्या है. CPU कंप्यूटर में एज अ ब्रेन काम करता है, जैसे कि एक इंसान की बॉडी में दिमाग काम करता है. CPU कंप्यूटर में इसी तरह काम करता है जैसे वो उसका दिमाग हो. CPU के 3 पार्ट्स हैं, CU, MU एंड ALU. MU क्या है? MU इज़ द मेमोरी यूनिट. The MU is that memory part of a computer that the CPU in executing the software directly uses. Before starting a calculation, the CPU may need to access the MU known as RAM. Unlike the hard disk, which is a magnetic memory, RAM is an electronic memory. Although the RAM is reasonably fast memory to input or output data from the fastest memory resides inside the ALU. Just as to play around with data, you must first remember it. So, for adding two members using the ALU fast, memory devices called registers are used inside the ALU. Access from and output to the register is very fast. Apart from these registers, these are also registers that are used to read-write data into the memory. These memory registers are known as MAR and MDR. What is MDR? MDR, Memory Data Register, reads data from memory and stores or writes the data it contains into memory. What is MAR? MAR means Memory Address Register, a CPU register that either stores the memory address from which data will be fetched to the CPU or the address to which data will be sent and stored. The computer presently uses digital circuits. These digital circuits work based on clock signals which due to the circuitry triggers events as has been covered earlier. Although most events on the monitor like copying files, playing songs, deleting files, etc. seem to have continually. That is because our mind cannot perceive separate signals that changes so fast. CPU के 3 अहम पार्ट्स हैं, CU, MU और ALU. CU मीन्स कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट CPU का बहुत ही अहम जुज़ू है. ये कंप्यूटर में तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर डेटा और हिदायत के बहाव को कंट्रोल करता है. MU मेमोरी यूनिट
इसका काम मेमोरी को स्टोर और डेटा को प्रोसेस करना है। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम तमाम हिसाबी अवामिल को सरअंजाम देना है। मेमोरी, व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी क्या है? मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पर मुश्तमिल होती है। ये डेटा और हिदायत को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं है तो ये काम नहीं कर सकता है। मेमोरी दो किस्म की होती है। देयर आर टू टाइप्स, नंबर 1 रैम एंड नंबर 2 रोम। व्हाट इज़ रैम? एंड रैम मीन्स R for random, A for access and M for memory, random access memory। रैम क्या है? ये एक आर्जी मेमोरी है। इट्स अ टेम्पररी मेमोरी। डेटा को प्रोसेस करने के लिए डेटा और हिदायत रैम में स्टोर की जाती है। CPU डेटा और हिदायत रैम से लेता है और हिदायत के मुताबिक डेटा को प्रोसेस करता है। CPU डेटा को प्रोसेस करने के बाद नताइज को भी रैम में स्टोर करता है। रैम मदरबोर्ड पर लगी होती है। जब बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो रैम में स्टोर डेटा और हिदायत ज़ाय हो जाती हैं। फ़र्ज़ करें आप कंप्यूटर पर कोई लेटर टाइप कर रहे हैं और बिजली चली जाती है। इस सूरत में आपका लेटर रैम से ख़त्म हो जाएगा अगर उसे सेव नहीं किया जाता है। एंड व्हाट इज़ रोम? रोम इज़ अ परमानेंट मेमोरी। ये मुस्तकिल मेमोरी है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इस किस्म की मेमोरी में हिदायत और मालूमात मुस्तकिल तौर पर स्टोर की जाती हैं। रोम कंप्यूटर को चलाने के लिए हिदायत और उसके हार्डवेयर डिवाइसेस के मुतालिक मालूमात पर मुश्तमिल होती है। ये मदरबोर्ड पर लगी होती है। रोम नॉन वोलेटाइल टाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि जब बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो रोम में स्टोर डेटा और हिदायत ज़ाय नहीं होती। रोम में स्टोर डेटा और मालूमात को तब्दील या ख़त्म नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ पढ़ा जा सकता है। यही वजह है कि इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये क्या है? मेमोरी डेटा रजिस्टर से हम जो मेमोरी और जो डेटा स्टोर होता है उसे रीड कर सकते हैं और राइट द डेटा इट कंटेन्स इनटू मेमोरी, और इस मेमोरी में वो डेटा जो है उसको कंटेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MER से क्या कर सकते हैं? अ CPU रजिस्टर दैट एदर स्टोर्स मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डेटा। ये CPU से वो डेटा लेता है और उसको आगे भेजने की सलाहियत रखता है और स्टोर करने की। हम कंप्यूटर को बिजली से मुंसलिक करने के बाद मॉनिटर पर क्या कर सकते हैं? हम गेम खेल सकते हैं, हम प्लेइंग सॉन्ग सुन सकते हैं। अगर कुछ फ़ाइल डिलीट करनी है, कॉपी करनी है, कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू।